Good morning. I am Rajendra Tayal, lecturer in mechanical engineering from Government Polytechnic Sirsa. Today I will discuss about the production planning and control, which is in the industrial engineering of 5th semester mechanical engineering. First one, what are the contents of today's topic? Production planning and control, definitions, objective of production planning and control, components of production planning and control, phases in production planning and control, benefits of production planning and control, limitations of production planning and control, and requirements of production planning. So these are the detailed contents of the topic. First one, what is production planning and control? The production planning control made up of three words, that is production, then planning, then control. So we will discuss three things, ki what is the production, what is the planning, and what is the control. Further we can combine these words like production planning and production control. Basically production planning and control consist of two terms, that is production planning, ki how we have to do the planning of the production, and then production control. After planning we are required to control the production. So first we will discuss production. What is production? Production is an organized activity of converting raw material into the finished product. It requires the organized use of resources such as men, machine, material, money and methods. What production is? We always use from production कि फलां चीज़ हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम वो प्रोडक्शन कर रहे हैं. So what is production? What production is? Production is an organized activity of converting raw material into finished products. When we are converting some raw material into finished good, that is known as a production. But here it is written, it is an organized activity. What basically production is? Production is an organized activity. If we are organizing the resources, if we are organizing the men, machine, material, money and methods, in last line it is written, it requires the organized use of resources. If we are organizing the use of resources and then converting the raw material into finished product, then it is known as production. And production is a process which is efficiently carried out. If we will manage the resources, if we will organize the resources, then we can efficiently carry out the production. The main motto of the production is to convert the raw material, whatever is the raw material, we have to convert the raw material into the finished good. Now production planning. What is production planning? Production is basically conversion of raw material into finished good. Then what planning is? In every aspect of life we need some planning. If we have to go to college or we have to go to school, then also we will plan कि सुबह मैंने तैयार होना है, then I have to pick auto and then I will go to the college and I have to attend these lectures. So this is kind of planning. कि in every aspect of life we need some kind of planning, and while carrying out the production we need planning. The planning involves management decision as how much is to produce, what materials, parts and tools are required, and within what time it is to be completed. It is a pre-production activity based on sales commitment in quantity, delivery dates and price and quality. What production planning is? In production planning we will take certain decisions, या हम कह सकते हैं कि management will take certain decisions that how much is to produce, कि हमने कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, कि what should be the quantity, कि जो हमने प्रोडक्शन करनी है उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, what materials, what we have to produce, कि हमने क्या काम करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमने बनाना है, what parts we have to use, कौन से पार्ट्स या कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, what material we have to use, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो कौन सा रॉ मटेरियल होगा, what tools are required, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी मशीन्स रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन से जिग्स एंड फिक्चर रिक्वायरमेंट होंगे. तो वी हैव टू सी दी रिक्वायरमेंट्स एंड विद इन व्हाट टाइम इज़ टू बी कम्प्लीटेड, और कितने टाइम में हमने उसको कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि वी विल प्लान ऑल दी थिंग्स, कि क्या काम हमने करना है,
कब हमने करना है, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमने प्रोड्यूस करना है, क्या उसकी क्वालिटी होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, दैट इज़ दी प्लानिंग एक्टिविटी, कि सारी चीज़ों को प्लान करेंगे एडवांस में कि ऐसे 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 हमारा जो है काम फर्स्ट टू लास्ट स्टेज तक इस तरह से हमारा काम मूव करेगा। Again, it is a pre-production activity based on sales commitment in quantity, delivery date, price and quantity. प्रोडक्शन प्लानिंग जो है ये एक प्री प्रोडक्शन एक्टिविटी है, मीन्स कि वी विल प्लान द प्रोडक्शन बिफोर एक्चुअल स्टार्टिंग। जब हम शॉप फ्लोर पे काम करना शुरू कर देंगे देन इट इज़ इन एग्जीक्यूशन। तो हमें शॉप फ्लोर पे काम शुरू करने से पहले वी विल प्लान। प्लानिंग इज़ बेसिकली प्री टू दी फंक्शन। तो हमने फंक्शनिंग से पहले जो है हम प्लान करेंगे। एंड जो प्लानिंग जो होती है हमारी वो बेसिकली हमारी जो हम सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं, जो सेल्स को हम फाइंड आउट करते हैं मार्केट एनालिसिस से, क्वालिटी के टर्म में, डिलीवरी डेट के टर्म में, प्राइसेस के टर्म में। तो ये सेल्स फोरकास्टिंग और सेल्स कमिटमेंट्स पे जो है ना, सेल्स कमिटमेंट मीन्स कि हमने कस्टमर को क्या कमिट किया हुआ है, कि कितनी क्वांटिटी हमने डिलीवर करनी है, कब हमने किस डेट पर डिलीवर करनी है, किस प्राइस पर डिलीवर करनी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स पे जो है प्रोडक्शन प्लानिंग जो है डिपेंड करेगी। Now second part is the production control. What production control is? It involves implementation of production plan. Production control क्या है? It involves the implementation of production plan. जो प्लानिंग स्टेज में हम प्लान्स बनाएंगे, जो हम प्रूफ तैयार करेंगे या जो हम खाका तैयार करेंगे, तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज़ डन इन द कंट्रोल फेज। वी विल इम्प्लीमेंट द प्लान। Then production operations are constantly evaluated, guided and directed along the plan formulated by the planning department. Control section में क्या होगा कि the production operations are constantly evaluated, guided and directed along the plan. यानी कि जो हमारा प्लानिंग जो हमने की थी और जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो हमारे प्रोडक्शन प्लान्स हैं, जो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो हमारा वर्क डन हो रहा है, तो उस वर्क डन को हम इवेल्युएट करेंगे, गाइड करेंगे और डायरेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्लानिंग, कि जो हमारा काम जो है वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहा कि नहीं हो रहा। दैट इज़ डन बाय द प्रोडक्शन कंट्रोल। Then production planning and control. What PPC is? In short form we can say PPC, that is production planning and control. So what production planning and control is now? The PPC can be defined as the process of planning the production in advance, setting the routes of each item, fixing the starting and finishing date, to give production orders to show floor, and lastly to follow up the progress of products according to the order. So now PPC is defined as the process of first one प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्शन इन एडवांस, कि हम प्लानिंग करेंगे प्रोडक्शन के एडवांस में। देन सेटिंग द रूट्स ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का यानी कि हर पार्ट ने जो इसने भी तैयार होना है उसका रूट सेट करेंगे। देन फिक्सिंग द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग डेट, उसकी फिनिशिंग, उसकी स्टार्टिंग और फिनिशिंग डेट की हर प्रोडक्ट ने या हर पार्ट ने जहाँ पे भी प्रोड्यूस होना है तो उसकी स्टार्टिंग डेट की कब वो स्टार्ट होगा और कब वो फिनिश होगा वो डेट फिक्स करेंगे। देन गिव प्रोडक्शन ऑर्डर्स टू द शॉप फ्लोर, फिर उसके बाद जो है ना जो हमारी शॉप फ्लोर होगी उसको ऑर्डर जाएगा कि आप जो है इस तारीख को आपने ये काम स्टार्ट करना है। और लास्ट में क्या होगा, फॉलो अप द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि कंट्रोल करेंगे जो हमारा काम हो रहा है शॉप फ्लोर पे। जब काम चल पड़ेगा तो उसके बाद हम उसको टाइम पे मॉनिटर करेंगे, उसकी प्रोग्रेस को जांचेंगे या उसकी प्रोग्रेस को चेक करेंगे। तो दिस कंबाइंड इज नोन एज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नाउ प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल जो है, द मोटो ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, और वी कैन से ए सेइंग फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल इज फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फर्स्ट प्लान, वी विल फर्स्ट प्लान आवर वर्क, यानी कि सबसे पहले हम अपने काम को प्लान करते हैं कि हमने क्या क्या काम कैसे कैसे करना है। तो फर्स्ट प्लान योर वर्क देन वर्क योर प्लान। आफ्टर दैट, आफ्टर प्लानिंग वी विल वर्क ऑन आवर प्लान, कि सबसे पहले हमने प्लान किया कि क्या काम कब करना है, कैसे करना है, किस क्वांटिटी में करना है, कौन करेगा, तो ये सारी चीज़ें हम प्लान करेंगे। एंड देन वी विल वर्क ऑन दैट प्लान, यानी कि हम उसका उस प्लान के हिसाब से देन वी विल स्टार्ट आवर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट प्लान।
तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैन बी समराइज्ड इन दिस स्टेटमेंट कि फर्स्ट प्लान योर वर्क, देन work your plan. Then objectives of PPC. What are the objectives? First one, effectiveness. Goods to fulfill customers need. Effectiveness यानी कि if हम प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल यूज़ करेंगे तो जो इफेक्टिवनेस आ जाएगी, प्रोडक्शन सिस्टम जो होगा दैट विल बिकम इफेक्टिव, वी कैन ईजिली फुलफिल द कस्टमर रिक्वायरमेंट. देन मैक्सिमम आउटपुट. आउटपुट जो है वो वी कैन इंक्रीज द आउटपुट बाय विद मिनिमम इनपुट. यानी कि जब हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस जो है अगर स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, सब हमें एडवांस में पता होगा, तो वहाँ पे हमारा आउटपुट जो होगा वो बढ़ जाएगा. देन क्वालिटी कंट्रोल. प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस क्वालिटी मीन्स ब्रांड क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस. क्वालिटी कंट्रोल जो होगी दैट विल बी मोर ईजियर और दैट विल बी हाई इन केस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्योंकि अगर सारे सिस्टम अगर हम ढंग से कम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जो होगा वो ज़्यादा होगा. मिनिमाइज थ्रूपुट टाइम, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इन मिनिमम टाइम. अगर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल को इफेक्टिवली हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे थ्रूपुट टाइम विल मिनिमाइज. थ्रूपुट टाइम मीन्स कि जहाँ से आपका रॉ मटेरियल का कन्वर्जन स्टार्ट होता है और जहाँ पे वो कंप्लीट होके फिनिश्ड गुड बन जाता है, तो उस टाइम को हम थ्रूपुट टाइम कहते हैं. यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड जो टाइम लगता है दैट इज़ नोन एज थ्रूपुट टाइम. तो थ्रूपुट टाइम को जो है हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल. देन कैपेसिटी. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन एंड मशीन्स. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से हम पूरी जो हमारी कैपेसिटी है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो मैन है, मशीन है, मटेरियल्स है, मेथड्स है, या जिग्स एंड फिक्चर्स है, टूल्स है, जो भी चीज़ अवेलेबल है हमारे पास प्लांट में, तो वी कैन फुल यूज़ द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट. क्योंकि हमें एडवांस में पता होगा कि इतने टाइम पे ये जॉब ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद वो मशीन जो है फ्री हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम कोई और जॉब वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. या कोई टूल एंड फिक्चर हमें चाहिए कि फर्स्ट ऑपरेशन में वो इतने टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो हम इमिडिएटली उसको सेकेंड ऑपरेशन में कॉल कर सकते हैं. यानी कि जो हमारी कैपेसिटी है अगर हमें एडवांस में पता है सारी चीज़ों का, तो हम उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. देन मिनिमाइज कॉस्ट. मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. मिनिमाइज मतलब कम कर सकते हैं कॉस्ट. अगर सारे का सारा सिस्टम अगर सही ढंग से चलेगा, प्लान्ड चलेगा, तो वहाँ पे कॉस्ट जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम जो है वो कम लगेगा, प्रोडक्शन टाइम कम हो जाएगा इसमें. देन मेंटेनिंग इन्वेंट्री. ऑप्टिमल इन्वेंट्री. हम इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं. इन्वेंट्री मीन्स इन्वेंट्री होता है कि द स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टोर ऑफ फिनिश्ड गुड इज नोन एज इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हमने इस डेट पे प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है और इस डेट पे हमारी प्रोडक्शन एंड हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या है कि हम उसी हिसाब से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे कि भाई हमने इस डेट को स्टार्ट करना है, तो इससे पहले रॉ मटेरियल मंगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है. इसी तरह से हम कस्टमर को ये बता देंगे कि भाई इतनी तारीख को आपको अपनी डिलीवरी मिलेगी, तो उस हिसाब से हमें ना जो है फिनिश्ड गुड रखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम जस्ट वो उसको बनाएंगे और कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे. इसी तरह से वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड होंगी, सब रूट शीट बना होगा, सब चार्ट बने होंगे, तो वहाँ पे जो है वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही कम रहेगा. क्योंकि अगर हमने कोई जॉब स्टार्ट की है तो हमने डिफ़ाइन किया है कि ये फिनिश होनी है इस टाइम पे. ऐसा नहीं है कि वो स्टार्ट करके छोड़ दी और फिर किसी दूसरे काम में लग गए, तो वो नहीं है. प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में सारी की सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड होगी, तो इसलिए इन्वेंट्री का लेवल जो है वो भी कम रहेगा. देन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन ऑपरेशन. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि अगर हमें हमारे पास कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमें टाइमिंग्स का पता है, तो हम फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं. यानी कि अगर हमारे पास कोई और अगर अलग से कोई ऑर्डर भी आ जाता है, बीच में इन बिटवीन कोई ऑर्डर आता है, तो वी कैन एकोमोडेट दैट ऑर्डर ऑल्सो. देन कोऑर्डिनेशन बिटवीन मैन एंड मशीन. हम जो है इसमें कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है, मैन है, मशीन्स है, मटीरियल है, तो इन सब के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा अगर हम प्रोडक्शन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे. देन कैपेसिटी प्लान फॉर करंट एंड फ्यूचर नीड. कि हम कैपेसिटी को भी प्लान कर सकते हैं, जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट्स है और जो हमारे फ्यूचर नीड्स है उसकी हम प्लानिंग कर सकते हैं. यानी कि
सपोज हमारे पास कोई ऑर्डर आया कि हमने 500 आर्टिकल्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमारी करंट कैपेसिटी क्या है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। और सपोज हम ये मानते हैं कि हमारे फ्यूचर में हमें 5000 तक का ऑर्डर मिल सकता है कि 5000 प्रोडक्ट बनाइए, तो फ्यूचर के लिए हमारे पास क्या कैपेसिटी है। तो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि करंट हमारी कैपेसिटी क्या है और फ्यूचर कैपेसिटी क्या होगी। देन रिड्यूस बोटलनेक्स, सोल्व प्रोडक्शन प्रॉब्लम अर्ली। यानी कि बोटलनेक्स मीन्स कि हम जो है ना वर्क को इकट्ठा नहीं होने देंगे कहीं पे भी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक मशीन पे तो ढेरों लग गया है और एक मशीन जो है वो खाली पड़ी है, तो इस चीज़ को जो है ना रिड्यूस करेगा। प्रोडक्शन प्लानिंग में हम क्या है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सभी मशीन्स पे, कि अगर प्लांट में 4 मशीनें हैं या 10 मशीनें हैं तो हम इस तरह से प्लान करेंगे कि सभी की सभी मशीन जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो। ऐसा नहीं कि एक ही मशीन पे काम ज़्यादा हो, तो वहाँ पे बोटलनेक्स जो है ना हम रिड्यूस करेंगे। देन मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो अपने आप मैक्सिमाइज होएगा। अगर कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है तो उस केस में प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। देन प्रोडक्शन शेड्यूल्स एज पर प्लान, जो प्रोडक्शन के शेड्यूल होंगे वो दैट शुड बी फॉलोड अकॉर्डिंग टू द प्लान। देन रूट्स एंड शेड्यूल्स टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ मैन मटेरियल एंड मशीन, अगेन सेम थिंग कि हम रूट्स बनाएंगे, शेड्यूल्स बनाएंगे जो कि मैन, मशीन, मटेरियल एक्सेट्रा को जो है ऑप्टिमाइज करेगा। मेंटेन परफॉर्मेंस एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स, हम जो है ना स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे और परफॉर्मेंस को मेंटेन करेंगे। Now, what are the components of production planning and control? These are the 4 basic components of production planning and control. We can divide components in 2 parts, that is production planning function and production control function. तो फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन। तो प्लानिंग फंक्शन जो है इसमें 4 पार्ट है, प्लानिंग, रूटिंग, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। और सेकंड जो है हमारा कंट्रोल फंक्शंस जो है इसमें 3 है, डिस्पैचिंग, फॉलोअप एंड इंस्पेक्शन। तो ये 7 जो है, दीज 7 आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यानी कि इन सातों फैक्टर्स के थ्रू वी विल इम्प्लीमेंट द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो 2 पार्ट है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शन एंड प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन।